Students, in our last lecture, we discussed about the radius ratio rule and the relationship between the nearest neighbor h and its radius. Now, in this lecture, we will discuss about the calculation of density of a cubic crystal from its edge. Okay, इसमें first of all we draw a cube which as is a picometer. As you know, 1 picometer is equal to 10 raised power minus 12 meter, and in centimeter it is equal to the 10 raised power minus 10 centimeters. So what is density? Number of particle present per unit cell is known as the density of crystal. Okay, let's suppose as of the unit cell is a picometer and the number of atom present per unit cell is z, and atomic mass of a element is m. So what is the volume of unit cell? As you know, a unit cell is a cubic form and the volume of cube is as sides का क्यूब होता है उसका वॉल्यूम. तो यहाँ पे हमने ए पिकोमीटर का क्यूब लिया है और इसको सॉल्व किया है, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो वी हैव वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब इंटू 10 की पावर माइनस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी नो दैट the formula of density is equal to mass or volume. So density of unit cell is equal to mass of the unit cell to the volume of unit cell. What is the mass of unit cell? Mass of unit cell is the number of atom in unit cell multiplied by the mass of each atom. If we want to calculate total mass of unit cell, then find out how many atoms made this unit cell and then multiplied by the mass of each atom. So that is mass of unit cell is equal to Z. What is Z? Number of atom present in unit cell, and m mass of each atom. Now mass of each atom is equal to atomic mass upon Avogadro number, because as you know, according to the mole concept, 1 mole of every substance is equal to the its atomic mass, and 1 mole is equal to the 6.022 into 10 raised power atom molecule. So mass of each atom is equal to the atomic mass upon Avogadro number, which is represented by the n naught. Okay. Put these values in this formula. Density of unit cell is equal to Z into m upon n naught, a cube into 10 to the minus 30 gram per centimeter cube. So our formula is rho is equal to Z into m upon a cube into 10 to the power minus 30 into n naught gram per centimeter cube. Z is the number of atom, m is the mass of unit cell, a cube into 10 to the power minus 30 is the volume of unit cell, and n naught is the Avogadro number. By using this formula, we have to calculate number of numerical by there is the 5 component. One is the density, number of atom, mass, and ages, and Avogadro number. By knowing 4 we calculate the 50. यहाँ पे हमारे पास 5 क्वांटिटीज़ हैं. अगर हमें 4 पता होती है तो हम जो है 5वीं कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड हुआ, मतलब उसमें कटायन और अनायन हुए और उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, FCC स्ट्रक्चर हुआ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हुआ, लाइक NaCl, तो उसमें एज निकालने के लिए जो आयंस के बीच की डिस्टेंस होगी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है. इसके भी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे 1 by 1. जो हमें न्यूमेरिकल्स यहाँ पे गिवन है उसको देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कैसे करना है. जैसे आपको गिवन है सोडियम हैज़ बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 365.9 पिकोमीटर. आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे सोडियम है उसका BCC स्ट्रक्चर है. BCC स्ट्रक्चर का मतलब जो Z की वैल्यू है बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट के लिए, वहाँ पे जो Z की वैल्यू है आपकी, वो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे Z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2. वाई 2? क्योंकि अगर हमारे पास किसी भी यूनिट सेल का जो है वो BCC स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो BCC स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो इसके कॉर्नर पे हैं, और कॉर्नर के साथ साथ जो आपका एक एटम है वो कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे है. तो अगर इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स के लिए और 1 बॉडी के सेंटर के लिए, तो यहाँ पे टोटल Z की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है. देन आपको दिया हुआ है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमने कल वाले लेक्चर में किया था, लास्ट लेक्चर में. तो D इज इक्वल टू 365.9 पिकोमीटर आपको गिवन है. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. वी हैव टू कैलकुलेट रो विच इज़ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है सोडियम का 23. आपको खुद पता है कि एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है, 23 होता है.
अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। हमें जेड पता है, हमें एम भी पता है, हमें ए क्यूब नहीं पता, और एवरेज नंबर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23। आपने 11th क्लास में नंबर ऑफ टाइम मोल कंसेप्ट किया हुआ है। इसलिए हम इस जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का फॉर्मूला है इसको यूज़ करके जो है हम ए की वैल्यू निकालेंगे। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए मैंने आपको नियरेस्ट नेबर का फॉर्मूला बताया था, A√3 डिवाइड बाई 2। आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए इज इक्वल टू, इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, डी इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, √3। आपके पास डी की वैल्यू क्या है, अगर आप ए कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको डी दिया हुआ है। डी आपको कितना दिया हुआ है, 365.9, और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और आपको पता है कि √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपको सॉल्व करने के बाद जो आपका टोटल आता है दैट इज़ द 422.5 पिकोमीटर। यहाँ पे आपका ये चीज़ आ जाती है। अब इस पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में जो हमारा ये फॉर्मूला है यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला फॉर्मूला आना है, क्योंकि जो सोडियम का मास है वो 23 ग्राम आपको गिवन दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में आएगा। तो इस चीज़ को अगर हम कैलकुलेट करना कन्वर्ट करेंगे तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ ये जो वैल्यूज़ हैं हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू जेड आपका 2 आया, मास आपका क्या है 23, इसको हम डिवाइड करेंगे 422.5 इंटू 10⁻⁻10, जो कि इसका हमने क्या लेना है यहाँ पे, होल क्यूब लेना है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द 6.02 इंटू 10⁻23। जब आप इसको टोटल कैलकुलेशन करते हो तो आपका आता है 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना करेंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि एक और एस्पेक्ट के बारे में इसके बताएगा। इसमें आपका सीजियम क्लोराइड का बोला गया है। सीजियम क्लोराइड हैज़ क्यूबिक स्ट्रक्चर, इस डेंसिटी इज़ 3.99 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सो आपको रो दिया हुआ है, रो आपको दिया है 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट्स डेंसिटी, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सीजियम एंड क्लोराइड आयन। डिस्टेंस दिया है, मतलब आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछी गई हुई है, और आपको जो एटॉमिक मास है सीजियम का यानी कि एम आपको दिया हुआ है 133 दिया हुआ है, और एन की वैल्यू आपको पता ही है 6.02 इंटू 10⁻23 आपकी होती है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आयनिक कंपाउंड के केस में बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए अगर सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होता है यानी कि ग्रुप 1 वाले एलिमेंट होते हैं तो जो जेड की वैल्यू होती है वो 1 लेते हैं, और अगर जो आपके बाकी के एल्कली मेटल्स होते हैं उनके लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो बीसीसी के लिए हम 2 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीजियम क्लोराइड है, इट मीन्स जो हमारे पास जेड है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमें क्या निकालना है यहाँ से, सबसे पहले हम ए निकालेंगे। तो इक्वेशन को रीअरेंज करो आप, तो सिर्फ यहाँ पे एक इंटरचेंज करना है, ए क्यूब यहाँ जाएगा और ये रो इसके प्लेस पे आ जाएगा। ए क्यूब इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन रो इंटू एन नॉट। ओके, अब आपका ए क्यूब इज इक्वल टू जेड की वैल्यू 1 पुट करोगे, मास आपको दिया है सीजियम का क्वेश्चन में 133, रो की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 3.99 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी ए क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो एक, इसको सॉल्व करने के बाद जो ए क्यूब की वैल्यू आएगी दैट इज़ द 70.15 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब आएगी ये वैल्यू। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे जो है इसको ए की वैल्यू आप निकालने की कोशिश करते हो, अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू निकालते हो तो ए की वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ पे 3 है वो उधर इसमें जाएगा, एंड दिस इज़ द 3 जो है
70.15 इंटू 10⁻⁻24 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 412.4 पिकोमीटर। ए की वैल्यू आ गई, आपका एज निकल गया। इससे हमने क्या निकालना है, एज तो निकल गया हमारा। अब हमने यहाँ से इसकी इंटर आयनिक डिस्टेंस पूछी हुई है, यानी कि डी पूछी हुई है, तो आपका फॉर्मूला पता है A√3/2। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो BCC स्ट्रक्चर का है नेवरिंग से, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि D इज इक्वल टू A√3/2 है। सो A की वैल्यू आपको पता है 412.4 पिकोमीटर में है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो है अगर इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं इंटरआयनिक डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 आ जाता है और इसको डिवाइड कर दो 2 से। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 357 पिकोमीटर। तो ये इंटरआयनिक डिस्टेंस है। इंटरआयनिक डिस्टेंस मतलब कि सीज़ियम आयन और क्लोरीन आयन के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरआयनिक डिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं, इंटरआयनिक डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हमने ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में हमने यहाँ पे जो है वो डेंसिटी कैलकुलेट की थी, ठीक है, 5। और उससे नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में हमने पहले एज कैलकुलेट किया, फिर एच से हमने इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एवोगैड्रो नंबर का मतलब कि हमें जो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है वो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू हमें निकालनी है N0 की। वैसे तो हमें पता है कि N0 की जो वैल्यू होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, बट फिर भी थोड़ी सी डिफरेंट आएगी इन वैल्यूज से। डेंसिटी ऑफ NaCl, डेंसिटी मतलब कि आपको रो दिया हुआ है 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है। देन आपको दिया है डिस्टेंस बिटवीन द सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे आपका जो NaCl का जो बीच का D दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 281 पिकोमीटर दिया हुआ है। मैंने आपको जब ये चैप्टर करवाया था, ये टॉपिक करवाया था, तो मैंने बताया था कि अगर आपका आयनिक कंपाउंड है और उस पर A पॉजिटिव B नेगेटिव FCC स्ट्रक्चर है NaCl का, तो एज निकालने के लिए जो डिस्टेंस होती है इंटरआयनिक, उसको 2 से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने एज कैलकुलेट करनी है A, तो मैं क्या करूँगी, 281 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 5, 562 पिकोमीटर यहाँ पे आपका जो है वो एज आ जाता है यूनिट सेल का, यानी कि आपकी A की वैल्यू यहाँ पे आती है। अब आपका फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A³ इंटू N0। आपको यहाँ पे जो निकालना है वो क्या निकालना है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू निकालनी। तो इस इक्वेशन को इस हिसाब से रीअरेंज कर लेंगे, ये चीज़ यहाँ पे जाएगी और ये जो रो की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, N0 इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A³ इंटू रो। यहाँ पे जो NaCl होता है, NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है वो B मतलब आपकी FCC होती है। FCC का मतलब जो Z की वैल्यू आती है वो 4। FCC में Z की वैल्यू 4 क्यों आती है, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो तो हर एक यूनिट सेल में कॉर्नर पे होंगे भी, क्योंकि फेस सेंटर्ड है तो 6 के 6 फेसेस पे भी होते हैं, और इनको कैलकुलेट करके यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 4 आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। सो हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 4 इंटू NaCl। सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना है, तो आपको पता है कि सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 58.5। तो ये NaCl का जो मास है यहाँ पे आप पुट करोगे 58.5 आपने पुट किया। उसके बाद जो आपका 562 है वो किस में है, आपका पिकोमीटर में है। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻10 करके, और इसका सारों का क्या लोगे, होल क्यूब लोगे। और यहाँ पे आपको डेंसिटी जो है वो गिवन है, डेंसिटी जो है आपको दी हुई है 2.165। तो ये आपको दिया हुआ है। जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हो तो N0 की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे आती है
6.09 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ये आप निकालोगे। इनकेस आपको नहीं भी आता, अगर न्यूमेरिकल में आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन लेंथी है, तो आप वैल्यू पुट करके छोड़ सकते हो। इंस्पाइट कि आप उसकी गलत कैलकुलेशन करो, उससे बेटर है कि आप वैल्यू पुट करके उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दो। तो यहाँ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल करे हुए हैं जो आपको जो है इस तरह से करने हैं, और जो है समझना है उसको। वहाँ पे एस्पेक्ट्स आपको दिए होंगे, कोई ना कोई वैल्यू आपको दी होगी, किसी न किसी वैल्यू के रिगार्डिंग आपने वो न्यूमेरिकल वहाँ पे करना है। तो आपको 5 पैरामीटर हैं, 5 पैरामीटर में से 4 पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे, सिर्फ आपको एक कैलकुलेट करना होगा। वो डायरेक्ट भी कैलकुलेट हो सकता है। यहाँ पे आपको जो है जो आपकी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वाले फार्मूलाज हैं उनकी भी यूज़ यहाँ पे करनी पड़े, तो इस वजह से आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है दैन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।